Hello, viewers. Welcome in my YouTube lecture series. Within 3 or 4 days, I didn't post any video. During this period, I was very busy. It is Sunday today, and I thought that I make a video for you. And today's topic is again a poem, and this poem is different from other. The title of the poem is Dover Beach, composed by Matthew Arnold. Dover Beach is a beach which is situated in the southern England. In fact, it is a very beautiful, peace, serene, calm, and full of solitude. A place where you find tranquility and solitudeness. This is also the place where there are cliffs and rocky taps areas, and it is a beach also, and you can see a look, a view, the scenario of France from that beach. So this beach makes a glass to make a glance to the France. In another word, it is situated one side in England and other side is France. And this may be a part of English Channel also. So Dover Beach is the famous place in southern England. And this poem is a Victorian poem. Matthew Arnold was one of the greatest poet of the Victorian era. But the age was also a golden period in English literature, like the period of Elizabethan Renaissance. This period has not only developed the poetry of poems, but also novels, criticism, drama, and I think all types of literary genre were found, and they were. It was also a period of transition. The modernity was come to its gate, and things were changing. And during this changing world, Matthew Arnold, who was a priest of his time in the field of poetry, he didn't want to change his behavior, his thought by the influence of the time. His philosophy and way of thinking are different. So he is also called the saga of the poems. This poem is also a root cause of peeping out the modernity. You will find that modernity is peeping out in this poem. So directly I come to the poem. The title of the poem is Dover Beach. The first stanza of the poem I am going to recite. The sea is calm tonight. The sea is calm tonight. The tide is full. The moon lies fair upon the straits on the French coast. The light gleams and is gone. The cliffs of England stand
glimmering and vast, out in the tranquil bay. Come to the window, sweet is the night air, only from the long line of spray, where the sea meets the moon blinks land. There are many things to say. The speaker or the poet want to convey not a single thing, but there is lots of ups and hills in the heart of the speaker, in the heart of the poem, and he want to convey through this Dover Beach. The starting line of the poem is that the sea is calm tonight. The sea is very calm. It is full of silent. And when the sea is calm, it doesn't means there is nothing going on in the inside the sea or any man or anything. अगर कोई आदमी शांत हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शांत है, उसका दिल दिमाग शांत है। हो सकता है कोई खिचड़ी पक रही हो, कोई बहुत बड़ा तूफान उसके अंदर बैठा हो, और वो शांति जो है वो तूफान से पहले की शांति। उसी तरह से पोएट मैथ्यू अर्नल्ड कहता है द सी इज काम टू नाइट, आज की रात समंदर जो है बहुत ही शांत है। द टाइड इज फुल, और उस समंदर में टाइड है, ज्वार भाटाएं हैं, फुल है, ऊपर नीचे हो रहा है, और उस ज्वार भाटा की सुंदरता को और उस ज्वार भाटा की लहरों को जो चांद है वो बढ़ा रहा है। क्योंकि मूनलिट नाइट में ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट होता है, टाइड्स राइज डाउन करते हैं, ऊपर नीचे होता है। तो चांदनी रात है, समंदर का किनारा है, और पोइट के अंदर में बहुत सारी बातें चल रहा है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन ड्रामेटिक मोनोलॉग, टोटली there is one speaker, or there may be a silent listener, or may not be। एक आदमी है जो अपनी मन की उद्गार को, मन की उद्घोषणा को बता रहा है। हो सकता है कि वहां पर कोई सुनने वाला हो या नहीं भी हो। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है लिटरेचर में, वो मोनोलॉग कहलाता है। चूंकि ये ड्रामेटिक है तो इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। तो ये पोएम जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा हुआ है कि शांत समंदर है। हो सकता है पोइट खिड़की समंदर के बगल के किसी घर में खिड़की से झांक कर समुद्र को देख रहा हो, या हो सकता है कि पोइट खुद समुद्र के किनारे खड़ा होकर के उस बीच के किनारे, समुद्र के साइड में जो बीच होते हैं जिसको समुद्र तट बोलते हैं, और वो बीच जो बहुत ही इंजॉयफुलमेंट होता है, जहाँ पे पर्यटक, टूरिस्ट और आजकल के जो एडवेंचरस पर्सन होते हैं और लविंग कपुल होते हैं, वो वहां जाते हैं और अपने आप को इंजॉय करते हैं, उस समंदर की लहरों के साथ खेलते हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। और कुछ ऐसे भी मेलनकली लोग होते हैं, जो फिलोसफर लोग होते हैं, जिसको ये फिजिकल लव से कोई लेना देना नहीं होता, वो दूसरे ही लव में खोए होते हैं, स्पिरिचुअल लव, या फिर कोई गहरी तार्किक रीजनेबल बातें उसके मन में चल रहा होता है। तो वैसे आदमी भी उस समुद्र के किनारे जाकर के उस समुद्र की लहरों के साथ खेलते हैं, जो उसके मन में उस समय चल रहा होता है। द सी इज काम टू नाइट, आज की रात समंदर बहुत ही शांत है, लहरें उठ रही है, चांदनी रात है। अपॉन द स्ट्रेट ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट, और ये सदर्न दक्षिणी लंदन में, इंग्लैंड में ये तट है, और ये सीधे फ्रांस तक जाता है। वहां से बैठ के आप फ्रांस को देख सकते हैं। ग्लिम्स
एंड इज गॉन द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, और उसमें चारों तरफ आपको क्लिफ नजर आएंगे। उस बीच में, उस समुद्र के किनारे में रॉकी स्टोन भी है, और रॉकी स्टोन का जो क्लिफ होता है, ऊपरी हिस्सा जो खतरनाक होता है, जिसपे आप पाँव पैदल नहीं चल सकते हैं, वो क्लिफ भी वहां से आप देख सकते हैं, और वो क्लिफ स्टैंडिंग पोजीशन में है। ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रंकल बे, और उस चांद की चांदनी जब उस समंदर में पड़ता है, तो उसकी जो दूधिया रोशनी है, यू जस्ट इमेजिन कि कितना सुंदर मनोरथ वो दृश्य बनता होगा, कि चांद की चांदनी जब वो सागर की लहरों से झिलमिलाकर मिलता होगा, और वो मिलने के क्रम में जो नज़ारे बनते होंगे, उस नज़ारों को देखने वाले जो लोग होंगे, वो कितने उस समय में रोमांचित रोमांचित हुए होंगे, थ्रिल्ड हुए होंगे, या उस एक्सपीरियंस को अनुभव किए होंगे, या उसको अपनी मेमोरी में कैद किए होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन। तो पोइट जो है, मैथ्यू अर्नल जो है, या स्पीकर जो है, वो इस बात को कहना चाह रहा है कि ये सारी चीज तो अच्छी है, हो रहा है, दुनिया नजारा है, चंद्रमा की रोशनी और समुद्र के पानी में मिलते हुए, ट्रैंक्विलिटी है, शांति है, सुकून है, लहरें हैं, टाइड है, चांद है, चांदनी है, समुद्र का किनारा है। वो हिंदी में एक गाना है ना, फिल्मी दुनिया में, ये नदियां, ये वो मौसम, नदी का किनारा, वो चलती हवा। शायद इसी तरह की बात तो मैथ्यू अर्नल्ड इस फर्स्ट स्टेंजा में कर रहा है। कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर। अब कम टू द विंडो, ये यहाँ पे संबोधन है। स्पीकर जो है बुला रहा है, पोइट जो है बुला रहा है, तो किसको बुला रहा है? तो चूंकि इस तरह के जो सीन है, वहाँ प्रेमी प्रेमिका ही हो सकता है, तो मे बी अ लवर इज कॉलिंग हिज बिलवेड, हस्बैंड इज कॉलिंग हिज वाइफ। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को आवाज देके कह रहा है, कम टू द विंडो, आ जाओ जाने मन खिड़की पे। स्वीट इज द नाइट एयर, देखो कितनी सुनहरी हवाएं हैं, और ये कितना शांत और कितनी रंगीन रात है। स्वीट एयर, महकती बहकती फरकती ये हवाएं, खुशबू लिए हुई हवाएं, आइए इसको एंजॉय कीजिए। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लिंक लैंड, कह रहा है कि ये जो लॉन्ग लाइन है, लंबी लंबी कतारें हैं समंदर की पानियों का, और इसमें ये चांद की चांदनी इस पानी से मिलती है, और उसके बाद वो जो रोमांचक दृश्य बनता है, आइए उस दृश्य को एंजॉय करें। यहाँ तक तो पोएम बहुत ही रोमांटिक लग रहा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। फिर पोइट कहता है, लिसन यू हियर द ग्रांटिंग रोर, लिसन। फिर से देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ टोन, देयर इज चेंजिंग ऑफ मूड, और देयर इज ए चेंज ऑफ थीम ऑल्सो। अचानक से पोइट कहता है, सुनो, लिसन, यू हियर द ग्रांटिंग रोर, क्या तुम इस रोर को सुन रही हो, इस चिंगार को सुन रही हो? ये जो रोलिंग वाटर है, ये जो बहती हुई पानी है, इस बहती हुई पानी की चिंगारें जो है, क्या तुम उसको सुन सकती हो, उसको महसूस कर सकती हो? और पिबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक, और उस बहती हुई पानी में जो छोटी छोटी कंकरियां हैं, पिबल्स हैं, जो उसके साथ चल रही है, जो दहाड़ मचा रही है, जो शोर मचा रही है, जो कंकरियां उस पानी के साथ बह रही है, एंड फीलिंग, जो उछल कूद कर रही है, एट द रिटर्न अप द हाई स्ट्रेंड, कभी वो कंकरियां आगे बढ़ जाती है, तो कभी धक्के खा के पीछे आ जाती है, कभी उसमें टाइड आता है तो पानी ऊपर उठ जाती है, कभी नीचे आ जाती है। बिगिन एंड सीज, देन अगेन बिगेन, with tremulous
Cadren slow and bring the eternal note of sadness. कह रहा है कि ये जो ईव्स एंड फ्लो हो रहा है, ये जो ज्वार भाटा है उठ रही है, गिर रहा है, और ये बहती हुई पानी की तरंगे ऊपर से सतही अर्थ में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर में अगर आप झांकने की कोशिश करें तो ये जो बहती हुई पानी जो चिंगार रहा है, जो पिबल्स के साथ बह रहे हैं, जिसके साथ छोटे छोटे कंक्रीट भी बह रहे हैं, पत्थर भी बह रहे हैं, जो नन्ही नन्ही उसके साथ जो सीप्स हैं वो भी बह रहा है, ये सब मिलके जो शोर मचा रहा है, इस शोर को समझने की कोशिश करो कि ये शोर क्या कह रहा है। ये शोर सैडनेस की निशानी है। यहाँ पे शिफ्ट करता है पोइम का मूड, और यहाँ पे ये सिंबल में बात करता है कभी। दिस इज द सिंबल कि ये जो मॉडर्न एज है, ये जो आने वाला आधुनिक एज है, चूंकि इन द टाइम ऑफ मैथ्यू अर्नल्ड देयर वाज चार्ल्स डार्विन, एंड चार्ल्स डार्विन हु there was a theory of evaluation, and there is not only a Charles Darwin, and there were many persons, and this era was, you can say that, out of control of everything, by economic growth or financial growth or personally growth, capitalism or Marxism. There were religious fight, or there were imperialism also. ये जो संघर्ष है आधुनिक युग में, सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, छोटे देश, बड़े देश, उसके अलावा ये मॉडर्न एज में वर्ल्ड वार, फिर से फर्स्ट वर्ल्ड वार, फिर सेकंड वर्ल्ड वार, फिर उसके अलावा ये रेसिज्म, गोरा काला, वाइटनेस, और ये जो अपने आप को अंग्रेजों ने एक टर्म क्वाइन किया और कहा कि मेरा ये जिम्मेदारी बनता है, इट इज माय ऑथोरिटी टू मेक द वर्ल्ड सिविलाइज्ड, पूरी दुनिया को सिविल करने के लिए, सभ्य बनाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। पता नहीं कब और किसने उसके कंधों पे ये जिम्मेदारी दी। तो ये सारी जो मोनोपोली है, डिप्लोमेसी है, ये सब कुछ उस इस लाइन में नजर आ रहा है। रोरिंग शोर, ये जो रोरिंग पीपल्स है, शायद यही पोइट कहना चाह रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये संसार कितनी तेजी से ट्रांजिट कर रहा है, बदल रहा है। सिंबल में कहना चाह रहा है कि देयर इज नथिंग काम, कुछ भी शांत नहीं है, कुछ अनहोनी होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा, and you know that the long videos are not interested by the students, so I am going to conclude for the first stanza, and there are many stanza. In the next video I will explain the second stanza. I have completed the first stanza of the poem Dover Beach, so enjoy the poem and like, share, comment my video. Thank you very much.